अभी दिख रहा है ना, यू कैन सी दिस. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. integer a is equal to 60. So name whatever you want to give, you have given that name. Suppose I want to declare another value. Suppose I want to give here, suppose I want here value 3.6 या 30.6, whatever value I want to give, 30.6. So bit type of data type I must declare for this value. Float. So bit type of data type I should declare for this value. Hello. So floating type. Floating. Float type. So I have written here. So I have written here float, and whatever name I want to give, I have given here X. So you can give whatever name you like. And now suppose I want to declare character value. Suppose I want to declare character value, so I have to write here character. Suppose ch name I have given for character value, and I have written here equal to. Suppose I want to keep the character A. So character value is written in double inverted comma, or how we write the character value? So single inverted comma. Single inverted comma. Inside single inverted comma, we write the character value. And after that, we write semicolon. See, after in C, the statement terminated by semicolon. So I have written here semicolon. Second statement was here, so I have written here semicolon. Third statement was here, so I have written here semicolon. Okay. So now what I'm saying that suppose I want to print, suppose I want to display it on the screen. Suppose I want to display on the screen, same as it is. Suppose I want to display on the screen uh, whatever I want to display on the screen, same message will be displayed, whatever we write it inside the double inverted comma. Suppose I want to display on the screen, display of screen I want to write on the screen. I want to write on the screen display of screen. Yeah, display of screen of Satya. Okay, so same thing will be written on the computer. Same thing will be displayed on the output of the screen. So now I'm saying that print f. Suppose I want to write value. Suppose I want to write the value. Suppose I want to display 30. So I will write here. अरे यार ये क्या हुआ? What is this? Suppose I want to write the value. Value of suppose I want to display 60. Suppose I want to display the variable a value inside variable a. So so that I will write. I want to display the value inside the variable a. So variable a, मतलब comma के बाद, after comma we will do that. After comma I have written here a, and inside single double inverted comma what we write is suppose the value inside any variable we want to display on the screen. So what we write inside double inverted comma, क्या लिखते हैं? हेलो हेलो सर वो स्टेटमेंट लिखेंगे जिसको हम लोग को शो करना है. स्टेटमेंट या फॉर्मेट स्पेसिफायर? हाँ. स्टेटमेंट लिख सकते हैं. व्हाट वी राइट इनसाइड दैट? फॉर्मेट स्पेसिफायर. और किस वेरिएबल की वैल्यू वी आर राइटिंग? वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए. तो ए किस टाइप का है? डाटा टाइप का इंटीजर. इंटीजर. सो व्हाट वी विल राइट फॉर इंटीजर? फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? परसेंटेज डी. परसेंटेज डी. डी. So we write here percentage d. Okay for you? Is it okay for you? So suppose we write here this admit. चलो एक कोई है उसे भी admit कर लेता हूं.
ठीक है. Now I am saying that printf. I want to write the value inside variable x. So what we use here inside double inverted comma? Bolo. I want to print the value inside variable x. So comma के बाद I have written here variable x. So inside double inverted comma what we write? फॉर्मेट स्पेसिफायर. कौन सा? बोलो. फ्लोट के लिए कौन सा था? परसेंटेज f. Percentage f. Now I am saying that suppose I want to write printf. कैरेक्टर लिया है, हाँ कैरेक्टर. तो कैरेक्टर के लिए क्या यूज करते हैं? परसेंटेज. क्या यूज C. करते हैं? परसेंटेज सी. बिकॉज आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस ch. वेरिएबल ch के अंदर वैल्यू आई वांट टू प्रिंट ऑन द स्क्रीन. सो वी राइट परसेंटेज ch. नाउ आई एम सेइंग दैट. तो ये समझ में आ गया? यू गॉट इट और नॉट? पता नहीं. प्रिंट एफ ठीक है. नाउ आई वांट देन व्हाट वी डू हियर. जब बंद करते हैं प्रोग्राम व्हाट वी डू? व्हाट वी राइट हियर? गेट ch. गेट ch नहीं लिखते हैं लास्ट क्लास. वी हैव सीन व्हाट हैपेंस अगर गेट ch वी डू नॉट राइट. व्हाट विल हैपन? अरे बोलो. हेलो हेलो. यस सर. Tell me that if we do not write gets here, then what will happen? सर प्रोग्राम विल नॉट टर्मिनेट. Program will not terminate. मैंने क्या बताया था कि पुट आउटपुट नहीं दिखता. आउटपुट दिख नहीं पाता है बिकॉज द स्क्रीन फ्लैक्चुएट. मतलब बहुत इतना फास्ट हो जाता है. फ्लैक्चुएशन के आउटपुट पे जाता है. कंप्यूटर गोज ऑन द आउटपुट लेकिन स्क्रीन होल्ड नहीं करता है. एंड वी आर नॉट एबल टू सी दैट. So get character till we enter any character, screen output screen will be hold. ठीक है. Here we have used integer main, so we will write here return 0. We will write here return 0. Return 0. See here, we have written integer main, so at last we write return 0 over here. So this is our program. Now I am saying that program को रन करना कहां से स्टार्ट होता है? कंप्यूटर स्टार्ट प्रोग्राम रनिंग कहां से स्टार्ट होता है? एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम वेयर? हेलो. Yes, sir. एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम वेयर? कहां से स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम? फ्रॉम मेन फंक्शन. रन करना प्रोग्राम कहां से शुरू होता है? एग्जीक्यूशन और रन करना. द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम या रनिंग ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन. तो सबसे पहले कंप्यूटर विल स्टार्ट रनिंग ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम हियर इंटीजर मेन. सो इट विल कम इन द नेक्स्ट लाइन. इट विल रीड इंटीजर a. दैट मींस इट विल allocate memory for variable a. वेरिएबल ए के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा इंटीजर टाइप का. इंटीजर टाइप का लेता है 2 बाइट. एक्चुअली आई विल टेक अनदर लेक्चर फॉर दैट हाउ मेनी बाइट इट टेक. ठीक है. तो 2 बाइट मेमोरी एलोकेट कर देगा मेमोरी के अंदर एंड उसमें वैल्यू असाइन कर देगा 60. इन द सिमिलर फेज नेक्स्ट लाइन कंप्यूटर विल कम. इट विल एलोकेट मेमोरी फॉर x इनसाइड द मेमोरी. फ्लोट के लिए 4 बाइट लेता है. तो 4 byte memory it will allocate for float variable x and value it will insert 30.6. For character value 1 byte it takes.
सो फॉर ch नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा मेमोरी के अंदर, एंड इट विल एलोकेट मेमोरी 1 byte और it will keep a inside that character value, and then it will read next output. So it will print on the screen display of screen of Satya. तो ये print होके आ जाएगा डबल इन्वर्टेड कोमा में, whatever be right, it is printed on the screen. Next type given here, printf percentage d a. a में वैल्यू क्या है 60, so percentage d की जगह क्या आ जाएगा, इंटीजर टाइप का है तो परसेंट a की वैल्यू आ जाएगी, तो a की वैल्यू इज 60, so print हो जाएगा 60. नेक्स्ट लाइन printf percentage f x, f फ्लोट टाइप का है, x वेरिएबल फ्लोट टाइप का है, इसमें वैल्यू है x वेरिएबल में 30.6, so 30.6 will be printed on the screen. इसमें कैरेक्टर है a, तो a will be printed on the percentage c की जगह a की a जो वैल्यू है इसके अंदर a है तो a will be printed on the screen. नेक्स्ट गेट here, तो होल्ड कर देगा स्क्रीन को, आफ्टर दैट रिटर्न 0. Now I'm going to see compile करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, what is shortcut key for compilation of the program. Compile यहाँ से भी कर सकते हैं, we can compile the program from here also, and shortcut key is Alt F9, Alt plus F9, मतलब Alt दबाओगे और F9 ऊपर फंक्शन की होती है कीबोर्ड में, तो Alt plus F9, Alter plus F9, that means Alt plus F9, but I can do from here also. मैं दबा के देखता हूँ होता है इसमें कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है, यहाँ तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन when you will run मतलब वीडियो कॉल नहीं होगा कॉन्फ्रेंस में, then it will surely. तो compile I will do from here, compile. तो कंपाइलेशन में पता चल जाएगा सिंटैक्स या सिमेंटिक एरर कितना है, देयर इज नो एरर इन आवर प्रोग्राम, सो 0 0. नाउ आई विल डू हियर रन, तो रन प्रोग्राम. रन में देखो डिस्प्ले ऑफ सत्या पहले आया, डिस्प्ले जो लिखा था प्रिंट टैब में डिस्प्ले ऑफ स्क्रीन ऑफ सत्या, दैट केम आफ्टर दैट जो वेरिएबल था मेरा a, उसकी वैल्यू आई 60, आफ्टर दैट 30.6 मतलब जो भी फ्लोट की वैल्यू थी 30.6 वो आई, आफ्टर दैट कैरेक्टर लास्ट में कैरेक्टर ए आया, वैल्यू ऑफ कैरेक्टर ए आई. ठीक है, नाउ आई एम सेइंग दैट यू कैन सी दिस और नॉट. अरे दिख रहा है? यस सर. हाँ, नाउ आई एम सेइंग दैट सपोज हियर इज अभी क्या आया था कि 7 आ गए थे, 7 सारी चीजें साथ साथ आ गई थी. नाउ मुझे ये चाहिए कि हर एक लाइन के बाद आए, जैसे डिस्प्ले ऑफ स्क्रीन ऑफ सत्या फर्स्ट आउटपुट में आए और उसके बाद लाइन चेंज हो जाए, तो बी डू हियर \n, क्या लिखते हैं \n. अब मैं ये चाहता हूं कि डिस्प्ले ऑफ स्क्रीन ऑफ सत्या लिखने के बाद लाइन चेंज हो जाए, आफ्टर दैट इसके बाद भी लाइन चेंज हो जाए, इसके बाद वैल्यू आए a की 60 और उसके बाद भी लाइन चेंज हो जाए, तो हियर आल्सो आई राइट \n. अगर मैं चाहता हूं कि इस x की वैल्यू 30.6 के बाद भी लाइन चेंज हो जाए, देन बी राइट हियर \n. नाउ आई वांट के ये 30.6.6000 आ रहा था, आफ्टर दैट आई वांट दैट के इसके बाद भी लाइन चेंज हो जाए, कैरेक्टर के बाद भी, मतलब जो भी लाइन चेंज करना है, ये तो लास्ट है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, बी डू नॉट राइट, तो चाहो तो यू कैन राइट हियर. नाउ आई एम अगेन गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम, रन. नाउ यू कैन सी दिस डिस्प्ले ऑफ स्क्रीन ऑफ सत्या, ये पुराना आउटपुट आ रहा है. कौन सा आउटपुट आ रहा है ये? अरे जो पिछली बार आउटपुट रन किया था, दैट आउटपुट इज कमिंग और नॉट? यस सर. Yes, sir. डिस्प्ले ऑफ स्क्रीन ऑफ सत्या 60 दो बार आ रहा है ना आउटपुट. डिस्प्ले ऑफ सत्या 60 30.600 ए पहला आउटपुट है. नेक्स्ट आउटपुट इज कमिंग डिस्प्ले ऑफ स्क्रीन ऑफ सत्या 60 30.600 और ए. तो ये दो बार आउटपुट आ रहा है, तो ये मान लो 8 बार ऐसे आउटपुट आ जाए, 8 बार, मान लो 6 बार आ जाए, 6 टाइम, तो अपनी स्क्रीन क्या हो जाएगी, भर जाएगी. आउटपुट स्क्रीन क्या हो जाएगी, भर जाएगी. तो इसी के लिए वी आर यूजिंग क्लियर द स्क्रीन. क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? Clear this. तो जो पुराने आउटपुट हैं
जो प्रीवियस आउटपुट है दैट विल बी डिलीटेड, मतलब क्लियर हो जाएगी स्क्रीन आउटपुट से। तो फॉर दिस वी आर यूजिंग CLRSCR, क्लियर द स्क्रीन। किस फाइल के अंदर होता है क्लियर द स्क्रीन? conio.h। तो क्लियर द स्क्रीन CLRSCR फंक्शन इज इनसाइड conio.h एंड conio.क्लियर द स्क्रीन कब यूज करते हैं? आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद ही क्लियर द स्क्रीन यूज करते हैं इनसाइड सी लैंग्वेज। हमेशा याद रखना, व्हेन वी यूज क्लियर द स्क्रीन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल, सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में क्लियर द स्क्रीन वेयर वी आर यूजिंग आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल जितने भी थे मैंने डिक्लेयर कर दिए, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, जो जो भी थे। आफ्टर दैट आई हैव यूज्ड क्लियर द स्क्रीन। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू सी द आउटपुट। अब आउटपुट देखो, पुराना आउटपुट दिख रहा है? हेलो हेलो, यस सर। पुराना आउटपुट दिख रहा है क्या अभी? नो सर। अभी अभी वाला आउटपुट दिख रहा है, डिस्प्ले ऑफ स्क्रीन। उसके बाद लाइन चेंज हो गई \NBF की, 60 आया, उसके बाद लाइन चेंज हो गई \BCAP। और ये 0.000 क्यों आ रहा है? तो नहीं आना चाहिए। 30.64%, ठीक है। now I'm saying that कि सपोज आई वांट टू राइट, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए। अरे यार, कोई फिर से ज्वाइन किया है। सपोज आई वांट लाइक दिस, कि मेरा वेरिएबल का नाम भी आए, या कुछ भी जो भी मैं लिखता हूं, वेरिएबल भी लिख के आए, वेरिएबल ए जो मैं लिख दूं यहां पे सेम असेटेड लिख के आ जाए, वेरिएबल ए इक्वल टू लिख के आ जाए, उसके बाद एक ही वैल्यू आए। यहां पे भी वेरिएबल ऑफ एक्स लिख के आ जाए और उसके बाद उसकी वैल्यू आए। एंड नाउ सपोज आई वांट हियर वेरिएबल ऑफ CH लिख के आ जाए, उसके बाद उसकी वैल्यू है। ठीक है, नाउ आई वांट दैट। तो नाउ अगेन आई एम गोइंग टू रन द प्रोग्राम। सेव कर लेता हूं मैं प्रोग्राम, सेव। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू रन द प्रोग्राम। सी, पहले क्या आया? डिस्प्ले ऑफ स्क्रीन ऑफ सत्या। इसके बाद वेरिएबल ऑफ ए इक्वल टू आया, वेरिएबल ऑफ एक्स इक्वल टू आया, वेरिएबल ऑफ CH इक्वल टू आया। ठीक है, तो वाट एवर वी राइट हियर, सपोज मैं लिख देता हूं यहां वेरिएबल ऑफ आशा, तो यहां पे आ जाएगा वेरिएबल ऑफ आशा। नाउ आई एम अगेन रनिंग द प्रोग्राम, वेरिएबल ऑफ आशा आ गया लिख के। तो मैं आई वांट टू से दैट कि व्हाट एवर वी राइट इनसाइड दिस डबल इन्वर्टेड कोमा असेटिस प्रिंट हो जाता है, और फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। एंड आफ्टर दैट \n किसके लिए होता है? फॉर लाइन चेंज। इतना समझ में आ गया? हेलो, इतना समझ में आ Yes, गया? sir. सपोज आई Yes, वांट sir. टू टेक 2 वेरिएबल्स, मुझे 2 वेरिएबल लेना है, उनका ऐड करना है, सम को आउटपुट में डिस्प्ले कर देना है। I want to write a program to add 2 numbers and display sum। सपोज इंटीजर टाइप के ले रहा हूं मैं। मान लो एक इंटीजर ए है, इंटीजर बी है, 2 नंबर लिए, इंटीजर ए एंड इंटीजर बी। इसके बाद मैंने लिया इंटीजर सी, इंट सी।
मान लो इंटीजर ए बी दो नंबर लिए, सम लिया, सम एक वेरिएबल लिया, डिक्लेयर कर दिया। अब मैं ये चाहता हूं इंटीजर ए में वैल्यू क्या है, व्हाट इज वैल्यू इनसाइड इंटीजर ए, 60 एंड 30। मैं चाहता हूं सम में क्या वैल्यू आ जाए, ए और प्लस बी जो भी है आपका वो ऐड होके आ जाए। ए में है 60, बी इनसाइड बी देयर इज 30। नाउ आई वांट ए वेरिएबल नेम सम, और सम में मेरा आउटपुट क्या आ जाए, ए प्लस बी, एडिशन ऑफ टू नंबर। तो डिस्प्ले मैं ये सब हटा देता हूं। अब मुझे क्या चाहिए है, ये मैं देखो अगर तुम्हें ये चाहिए कि कंप्यूटर इस लाइन को ना पढ़े, इफ वी वांट दैट कंप्यूटर डू नॉट रीड दिस लाइन, if we want this computer do not read this line, तो मैं क्या करूंगा, we will use /*/, इसको यूज करूंगा तो कंप्यूटर इस लाइन को पढ़ेगा नहीं। ठीक है, नाउ वी कैन सी अवर आउटपुट। ए भी लिया, इंटीजर सम किया, ए की आउटपुट देना है वेरिएबल ऑफ ए या वैल्यू ऑफ ए लिख देते हैं, व्हाट एवर यू वांट टू राइट इनसाइड दिस, वी राइट हियर वैल्यू ऑफ ए। तो वैल्यू ऑफ ए लिख के आ जाएगा और ए की वैल्यू परसेंटेज डी की जगह आ जाएगी। सिमिलर फैशन वी कैन राइट हियर वैल्यू ऑफ बी और एक्स, और सिमिलर फैशन वी कैन राइट हियर, अच्छा डी, तो ए एक्स की वैल्यू परसेंटेज डी में चली जाएगी। यहां पे मुझे चाहिए है वैल्यू ऑफ सी या वैल्यू ऑफ सम। तो वैल्यू ऑफ सम इसका सी एच की जो सी एच लिखा है सम। नाउ आई एम सेइंग दैट सर आपने x का कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया सर, एरर देगा वहां पे। कहां पे रनिंग आउट हो रहा है टाइम? सर x जो आपने लिखा है a के नीचे वो आपने डिक्लेयर नहीं किया है। एक मिनट मैं देख लेता हूं कहां नहीं किया। हाँ x, हाँ x नहीं b है एक्चुअली, ठीक है, बी वेरिएबल डिक्लेयर किया ना, तो x तो ऐसे लिख दिया। तो ये तो लिख सकते हैं इस अंदर x, देयर इज नो प्रॉब्लम, कुछ भी लिख सकते हो अंदर। तो वैल्यू ऑफ सम यहां पे नहीं लिख सकते क्योंकि ये वेरिएबल नेम है। अब ये होगा कि a की वैल्यू 60, b की वैल्यू 30, सम इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90, तो आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे 90, यहाँ 60 a की वैल्यू, b की वैल्यू 30। अब रन करके देख लेते हैं, टाइम ओवर होने वाला है। देखो वैल्यू ऑफ ए 60, वेरिएबल ऑफ एक्स 30, वैल्यू ऑफ सम इज इक्वल टू जेड आ रहा है। कुछ गलत किया है क्या? अच्छा कैरेक्टर टाइप का, सम की वैल्यू मतलब जेड का वो आस्की कोड होगा, तो यहाँ पे भी परसेंटेज डी। देखो वैल्यू ऑफ सम इज इक्वल टू 90, 30 60 30 90। तो मेरे हिसाब से, हेलो, यस सर। हाँ, तो अभी आप लोग यहाँ पे हो, तो अभी और एक बार ज्वाइन करोगे? हेलो, टेल मी अगेन यू वांट टू ज्वाइन? नो सर, नो सर। हाँ, ज्यादा है ये सर, बहुत ज्यादा है ये सब। बहुत ज्यादा है। ठीक हाँ है, सर। फिर आज के लिए इतना काफी है। ओके, अटेंडेंस दे दी सभी लोगों ने इस क्लास की भी? टाइम ओवर हो रहा है क्योंकि अटेंडेंस हुआ था क्या सर? दे दीजिए अटेंडेंस, चैट बॉक्स में लिख दिया करो। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। तुम लोगों का कोई फ्री पीरियड नहीं रहता है, फ्री लेक्चर, लाइब्रेरी क्लास? सर उस लाइब्रेरी क्लास से हम लोग का डबल ही क्लास हो जाता है। तो कोई डबल नहीं, ही का होता है एक भी फ्री नहीं रहता है ना? सर कभी कभार होता है सर, मैथ सर नहीं लेते या केमिस्ट्री मैम नहीं लेती है, क्लास पोस्टपोन हो जाता है, तो अच्छा उस अच्छा, वक्त फ्री कभी होता कभार है। हुआ करे तो एक आध दिन पहले मुझे बता दिया करो।
सर हम लोग को भी उसी दिन पता चलता है, अच्छा, जिस दिन अच्छा। सर नहीं रहे। ठीक उसी है, दिन तभी मैसेज बता करते हैं। देना, अगर लूंगा तो फिर उसी टाइम पे ले लूंगा। ठीक है सर। ठीक है, और सब बढ़िया चल रहा है? और कोई दिक्कत है प्रोग्रामिंग वगैरह में? समझ में आ रहा है या सब ऊपर जा रहा है? समझ में आ रहा है सर। आ रहा है ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है।